ओके। हाँ, सो लास्ट प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला जो है उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या था, उसको ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग, देन वी कीप दिस प्राइस इंडेक्स नंबर का थिंग एज इट इज एंड वी पुट Q0 as the weight into 100. This is your last price index number. Then we had Parsh's index number. Parsh's index number फिर से प्राइस से डिस्कस करेंगे। प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है उसका, P01 P is equal to what they take, they take current year का quantity as a weight. So this is Q1 and Q1 and into 100. Okay, so this is my Parsh's index number. After that we had Marshall Ageworth. Marshall Ageworth is represented by what, M dash E. क्या है मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला, यस, न्यूमरेटर्स ऑफ व्हाट, एल एंड पी। सो न्यूमरेटर ऑफ एल एंड पी क्या है, न्यूमरेटर ऑफ एल इज व्हाट, P0 Q0 प्लस न्यूमरेटर ऑफ पी इज व्हाट, P1 Q1 अपॉन डिनोमिनेटर्स ऑफ एल एंड पी। डिनोमिनेटर ऑफ एल क्या है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मेरे शुड बी P1 Q0। डिनोमिनेटर ऑफ एल क्या है, P0 Q0 प्लस डिनोमिनेटर ऑफ पी क्या है, P0 Q1 into 100. This is what your Marshall Ageworth. उसके बाद हम लोगों ने देखा था what your this thing Dorvish Bull. Dorvish Bull में क्या था, yes, P01 is your yes, this is represented by DB and P01 is what, your summation of P1 Q0 upon summation of P0 Q0 plus summation of P1 Q1 upon summation of P0 Q1 upon 2 into 100। और हम लोगों ने इसको शॉर्टकट में भी लिखा था, क्या था, डॉर्विश बोले इज व्हाट योर L plus P by 2, मतलब it is average of your last price index number and Parsh's index number. Okay, so this is your Dorvish Bole. After that we move to your this thing Fisher's. Okay, Fisher's index number. So Fisher's index number, Fisher's index number में क्या था, yes it was geometric mean बताया था मैंने, है ना, P01 into bracket F हो गया। So what is this, under root of your summation P1 Q0 upon summation P0 Q0 into summation, yes, summation P1 Q1 upon summation P0 Q1. So this is nothing but your under root of L into P. Okay. Now let's move to your last one, that is Walsh. I guess it is double. कोई डबल ए लिखते, कोई सिंगल ए लिखता है। एक्चुअली तुम लोग फाउंडेशन का बुक रेफर करोगे ना तो ये चेंजेस तुम लोगों को दिखते हैं। डॉर्विश को कभी कभी ड्रॉविश लिखते हैं। ओके, so Walsh index number W, again it is price index number. Okay, so it is what, क्या लेता है ये, अंडर रूट ऑफ Q0 Q1 अपॉन समेशन P0 अंडर रूट ऑफ Q0 Q1 into 100। ओके, ये फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। these formula they can ask for 2 marks। okay, so let's move to now calculation। I'll share our textbook file with you। okay, इजी है, बहुत आसान है ये टॉपिक। ओके, बहुत आसान है। So now this 5.2 we will start with the exercise directly। what all I have, किसी ने तो ट्राई भी किया था, वेरी गुड, यू आर ट्राइंग समथिंग ऑन योर ओन, इट इज गुड साइन। ओके, यस, तो उन्होंने बोला है 5.2 एक्सरसाइज में कैलकुलेट लास्ट पेयर्स, पाशेस, डॉर्विश बोले, मार्शल एजवर्थ, वॉल्श नहीं पूछा है मैंने। ओके, ये सारे इंडेक्स नंबर को हमें कैलकुलेट करना है फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, तो लेट्स प्रोसीड देन। क्या क्या दिया हुआ है, पहले जो दिया हुआ डेटा है राइट इट डाउन। कमोडिटी, दिस इज व्हाट योर एक्सरसाइज 5.2। ओके, दिस इज व्हाट योर एक्सरसाइज 5.2। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1,
It is your commodity A, B, C and D. Okay. Then we have base year का price and quantity P0, Q0. We have current year का price and quantity P1, Q1. 8732, 8732. Okay. Then we have quantity as 20, 10, 30, 50, 20, 10, 30, 50. Okay. Then I have current year ka price which is 11, 12, 5 and 4. Okay. Then I have current year ka price. Current year ka quantity kya hai? I am having current year ka quantity as 15, 10, 25, 35. And to find kya hai? What to find? I am going to find L. I am going to find P. I am going to find DB and Marshall each one. Okay. Now, let's move to calculation now. Okay. Yes. यहाँ पे हम चार्ट कंटिन्यू करते हैं. Okay, that would be better. To find यहाँ पे लिखते हैं. To find L, then I am going to find out P, DB and M. Okay. So अभी हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले L. L का फॉर्मूला लिखते हैं. क्या क्या चाहिए मुझे L के फॉर्मूला के हिसाब से? Yes, last base index number L is given by yes P01. इसी तरीके से लिखना है. P01 into bracket L क्या है? Summation P1 Q0 upon summation P0 Q0 into 100. Okay, this is my your L का फॉर्मूला. Okay, अब हमें क्या चाहिए? P1 Q0 चाहिए. P1 Q0. Where is P1 Q0? Where is P1 Q0? So I'll prepare another column which will have P1 Q0. I'll put it with different color. P1 Q0. Okay. Then the second thing I want is what? P0 Q0. I want P0 Q0. P0 Q0. Okay. First focus on your last space index number. Okay. P1 Q0 कितना आएगा? Yes, इन दोनों का multiplication करना है मुझे. P1 Q0 11 into 20 220, 11 into 10 120. This is 150. This is 200. Okay. तो summation P1 Q0 कितना मिला हमें? Let's check it out. This is 0. Then 4 and 5 9. Then I am having 6. So I got 690 as my P1 Q0. Okay. अब आते हैं next column पे. That is P0 Q0. P0 Q0 मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें करना. सॉरी, P0 Q0 मतलब हमें ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है ना. तो P0 Q0 में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है. 8 into 20 160. 7 into 10 70. This is 90. This is 100. तो समेशन P0 Q0 कितना आया फिर ये? 0. Then I am getting 7 plus 9 16. 16 plus 6 22. 2 आया ऊपर. So I got 420. Okay. So I got this as 420. I substitute these values in the equation. What I am getting? Yes, P1 Q0 कितना मिला? 690 मिला. P0 Q0 कितना मिला? 420 मिला. Into 100. So let's check it out. कितना आता है? Okay. 690 into 100 divided by 420. कितना आता है? 164.285. 164 ना? Yes. 164.285. This can be approximated to 164.29. No need to write interpretation as long as they don't ask you. Okay, in this. लिखना है तो कैसे लिखोगे? There is 64.29% rise in prices.
in prices with respect to base year. Interpretation अभी तुम लोगों को आता है लिखते हैं. Okay, so this is your last price index number. Now let's move to your purchase index number. What is my purchase index number का formula? P01. ये हो गया P. क्या फॉर्मूला है फिर? Yes, summation. Summation किसका? P1 Q1 upon P0 Q1 into 100. This is the purchase index number का फॉर्मूला. तो P1 Q1 चाहिए एंड P0 Q1 चाहिए. P1 Q1 चाहिए, यहाँ पे दिख रहा है मुझे P1 Q1. आई टेक सम डिफरेंट कलर. P1 Q1 चाहिए हमें, P1 Q1 चाहिए. 15 into 11 कितना आ रहा है? 15 1 जा 15, 15 1 जा 15 and 1 16 है ना. 12 into 10 120, 25 5 जा 125, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 by 2 14. कितना आ रहा है समेशन P1 Q1? 5 5 10, then I am getting this 11 and 4 15, then this is what? 550. Okay, 550. So I got 550 numerator. अब हमें चाहिए P0 Q1. P0 Q1, where is it? P0 Q1. Okay, P0 Q1 हमें चाहिए. P0 Q1, P0 Q1, ये चीज हमें चाहिए. ओके, P0 Q1, P0 Q1. क्या क्या आएगा? 15 8 जा 120, 15 8 15 8 जा 120, P0 Q1. Then 7 into 10 70, 25 3 जा 75 and 35 2 जा 70. P0 Q1. अब इसको ऐड करना है, समेशन P0 Q1. जस्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन देखो. ओके, बिकॉज ये क्या है ना, ये इंडेक्स नंबर पे जो स्टडी हुआ है उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं. दैट इज व्हाई इट इज जस्ट कैलकुलेशन. हम लोगों ने जो स्टडी किया उसको हम बस क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं, नथिंग एल्स. सो 5. Okay, next 7 3s are 21, 21 into 23, so 335 it is. So कितना आता है? 550 and 335. Numerator is 550. Where is numerator? Where is numerator? 550. How much is the denominator? 335. 335 into 100. Let's check it out. कितना आता है? Yes. 550 divided by 335 into 100. Now I have 164.179, which is 164.18. ओके, देखो आसपास वैल्यूज मिल रहे हैं ना. यहाँ पे 164.29 है, यहाँ पे 164.18 है. ओके, आसपास ही मिलने चाहिए जहां तक के वैल्यूज. बिकॉज कैसे है ना, ऐसे तो नहीं चलेगा कि भाई एक इंडेक्स नंबर 64% राइज बताता है और दूसरा इंडेक्स नंबर हमें यस ओह, यू पीपल आर टेम्पटेड टू यूज द कैल्सीज. ओके ठीक है, आई डू इट फॉर यू डेफिनेटली. विदाउट कैल्शियम करते हैं, ठीक है. थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसलिए आई वाज अवॉइडिंग. ओके, अवॉइडिंग टू डू दैट. ओके, कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम बहुत है. आई विल डू इट विदाउट कैल्सीज, डोंट वरी. So this is what 64.18%. So yes, this is what 64.29 and this is what 64.18%. So आसपास वैल्यूज मिल रहे हैं, आसपास ही मिलने चाहिए. क्योंकि अगर एक मैथमेटिशियन ने बोला कि भाई 64% का राइज है और दूसरे ने बोला भाई नहीं 50% का राइज है, ऐसे कैसे चलेगा, है ना. तो डेफिनेटली आसपास वैल्यूज ही मिलने चाहिए. Now this is your Parsh's index number. Now let's move to your what? Marshall age what? Marshall. Yes, यहाँ पे हमने एक statement नहीं लिखा. This statement is needed. Parsh's index number is given by. ये लिखना पड़ेगा. Okay? This we have to write.
Now Marshall, Edgeworth's index number is given by. Okay. Yes. So P01 Marshall Edgeworth. क्या बताता है इसका फॉर्मूला? याद है क्या बोला था मैंने? न्यूमरेटर्स ऑफ L and P we need to add. So what are the numerators of L and P? That is P1 Q0 plus what? Summation P0 Q1 upon summation, this is what, P0 Q0 plus summation P0 Q1 into 100. Any doubt in this? Okay. समेशन P1 Q0 हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, या फिर चार्ट की तरफ देखो ही मत। समेशन P0 P1 Q0 कितना है? 690 है। P1 Q0 कितना है? 690 है। P0 Q1 कितना है? P0 Q1 कितना है? P0 Q1, कुछ तो मिस्टेक हो गया मेरा यहाँ पे मैंने P1 Q1 लिखना चाहिए था ना, यहाँ पे P1 Q1 लिखना चाहिए। न्यूमरेटर्स है ना दोनों के, यस देखो न्यूमरेटर्स है ना दोनों के, इसका न्यूमरेटर एंड इसका न्यूमरेटर है ना, इसका डिनोमिनेटर एंड इसका डिनोमिनेटर, सो आई विल हैव टू कंसीडर दैट। ओके, सो क्या है फिर? P1 Q0 का वैल्यू मैंने लिख लिया 690। ओके, आफ्टर दैट P1 Q1 का वैल्यू आई विल गेट 550 अपॉन P0 Q0 का वैल्यू इट इज 420 है ना, चार्ट में देखो P0 Q0 इज व्हाट 420। ओके, 420 प्लस P0 Q1 कितना है? P0 Q1 कितना है? 335। अभी मुझे किसी ने तो डाउट पूछा है कि ये कितने मार्क्स के लिए आएगा। ओके, देखो एग्जाम में सारे के सारे इंडेक्स नंबर को जरूर नहीं पूछेंगे, कोई तो भी एक तुम लोगों से पूछेंगे। टेक्स्ट बुक में तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए उन्होंने एक ही क्वेश्चन इतने सारे मेथड से सॉल्व करने को बोला है, बट एग्जाम में वो ऐसा नहीं करेंगे। ओके, ऐसे तो फिर इंडेक्स नंबर तुम्हारा 10-12 मार्क्स के लिए होना चाहिए, वैसे नहीं करेंगे। ओके, सो यहाँ पे अगर लास्ट पेज इंडेक्स नंबर पूछा तो दैट वुड बी आस्क्ड फॉर लास्ट पेज, या फिर पासेज इंडेक्स नंबर पूछा तो दैट वुड बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स। अगर सपोज मान के चलो तुम्हारा ये डॉर्बिश बोले या फिर अपना कौन सा था फिशर्स पूछा तो दैट वुड बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स। ओके, सो लास्ट पेज एंड पासेज 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड 2 मार्क्स के लिए पूछेंगे, नॉट मोर देन दैट। ओके, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। So into 100, is this right? P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1, P0 Q1. So I have taken correct values if I am not wrong. Yes, P1 Q0 कितना लिया है मैंने? P1 Q0 लिया है 690, correct है 690। P1 Q1 कितना लिया है? P1 Q1 should be 550। P0 Q0 कितना लिया है? It should be 420, so it is 420 and 335. So everything is correct. Now let's move to calculations. Okay, calculation करते हैं अभी। Yes, 690 plus 550 कितना आता है? 0, 12 and 420 plus 335 कितना आ रहा है? 557. Okay, so how much is my final expression? What is my final expression? 1240 upon 755 into 100. Now let's cancel out this thing. Okay, cancel out करते हैं ये सब चीजें। क्या क्या आएगा कैंसिलेशन करने के बाद? yes 1240 अपॉन 755, 5 से कट हो जाएगा ये। ओके, 5 1 5, 5 2 25 and 5 1 5 again, 5 2 10, 5 4 20, 5 8 40। 11 से कट हो रहा है कि ये? 11 से नहीं हो रहा है, नीचे वाला नंबर हो रहा है लेकिन ऊपर वाला नंबर 11 से कट नहीं हो रहा है। ओके, 100 को साइड में रखो, 100 को बीच में मत लाओ। 100 हमारा डेसिमल शिफ्टिंग के लिए काम आता है, सो 100 को बीच में मत लाओ। ओके, जस्ट डिवाइड दिस 120 and 148, so we'll perform that operation। sorry 248, 121 into 2 कितना हो रहा है? 42, 242, so I think I should go for 2।
242 कितना आया ये 6। अब क्या होगा, डेसिमल देना पड़ेगा, आई पुट 0 हियर अगेन, आई विल नीड अनदर नंबर सो आई पुट 0 0 कितना आ रहा है 121 into 5 I will check it out 5 5 to the 10 and this is 6 it should be 4 yes 4 8 4 4 8 4 it should be 6 1 and 1 1 1 6 okay again I will have to put 0 I think I should go for 9 I think I should go for 9 18 okay so it is 2.049 151 आया है this sorry 5 151 thanks for helping me thanks for helping me 151 आ रहा है correct okay so 151 into check it out 2 and 3 2 से नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से है ना क्योंकि वो बहुत बड़ा नंबर जा रहा है 300 तक वगैरह जा रहा है so I think I should go for 1 only 151 this is 7 this is 9 and 0 I'll put point decimal here and then 970 I'll check out for 8 8 5 are 40 and बहुत बड़ा नंबर जा रहा है 8 से I'll check for 6 okay we'll check for 6 6 6 5 are 30 this one is 6 and 3 9 so 906 so it's 906 कितना आ रहा है ये 460 okay I'll put 0 again I'll go with 3 कितना हो रहा है 3 नहीं 4 से चलते हैं 4 1s are 4 4 5s are 20 and this is 604 so it should be 4 604 safer side I will calculate third decimal as well okay so I can approximate it so it is how much 604 आया ये 6 then I got 3 then I got 0 then I have 0 then what is that yes it should be twice so 1.642 should be the required number 1.642 into 100 करना है मुझे I shift that decimal here so it is 164.2 I think I should go for one more decimal okay one more is enough don't worry so yes it is 2302 okay so how much is this 850 580 580 so it should be thrice yes 151 into 3 it should be 3 15 and 4 so it should be 3 1453 so it is how much 7 2 and 1 127 so now if it is 0 then I will have to go for 7 and this is 10 okay I think 8 से भी जाएगा 8 से भी हो जाएगा 8 15 8 से 120 होता है ना yes 58 हो गया 40 so 8 देखो कितना फर्क पड़ता है देखो इतने डेसिमल्स तक हमें जाना पड़ेगा so क्या हो जाएगा फिर ये 1.6238 into 100 so कितना आया फिर yes it should be 238 ना so I think it should be 164.24 this should be the answer you can solve with me simultaneously हम solve कर सकते मतलब मैं जब explain करूंगी तब तुम लोग अपना अपने कैलकुलेशन करोगे तो भी चलेगा अब ये हो गए मार्शल एजवर्थ अब हम चलते हैं डॉर्बिश पे डॉर्बिश बोले क्या है यस डॉर्बिश बोली देखो it's all about calculation I think it's Darvish Bole's index number it is DB is given by yes क्या है what is formula P01 DB is equal to what yes what is my formula summation क्या होता क्या है एवरेज होता है L and P का yes so what is L
summation P1 Q0 upon summation P0 Q0 plus summation P1 Q1 upon summation P1 P0 Q1 upon 2 into 100. अब देखो ये सब करने की जरूरत है क्या? ये सब करने की जरूरत है क्या? Obviously not. Why? Because this is my L, this is my P whole divided by 2. Why can't I do this? No need to calculate these things again. पागल हो क्या? बिल्कुल कैलकुलेट नहीं करनी है. Okay? You can directly use this formula L plus P by 2, but give the explanation. Okay? Give this explanation. That would be better. That would be safe. Okay. L कितना आया है अपना? L आया है 164.29. 164.29. ये कितना आया है अपना? Yes, P is 164.18 whole divided by 2. So yes, कितना आता है अपना कैलकुलेशन? Let's check it out. 164.29 plus 164.18 कितना आया ये? 17. This is 4, 8 and 3. Okay, so 328.47. 328.47 upon 2. Now let's divide this 328.47 को 2 से डिवाइड करना है. 2 1 जा 2. Yes, कितना आता है? ये पे कर लेते हैं. Okay, time waste. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8. 2 2 जा 2 3 जा 6 and 5. So it is approximated to 164.24. Okay, अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लेना. Okay, सब कुछ कैलकुलेशन है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं. Now let's move to next question. Okay, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? सेकंड में कर लेती हूँ. थर्ड एंड फोर्थ यू ट्राई आउट. ओके, सेकंड आई डू. ओके, सेकंड में क्या है? कैलकुलेट वॉल्श. एक मिनट. कैलकुलेट वॉल्श प्राइस इंडेक्स नंबर इन प्रॉब्लम 3 एंड 4. नहीं, ये सेकंड इसका है शायद से. सेकंड होमवर्क के लिए करो. थर्ड आई विल डू. ओके, सेकंड होमवर्क के लिए करो. क्वेश्चन नंबर 2 जो है, डू दैट फॉर होमवर्क. If you want me to solve it, I can solve. Yes. Just give me reply in chat box. Do you want me to solve the question number 2? If yes, you can put it in the chat box.